Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone, and welcome back to the session on interpersonal skills. We are continuing a series of capacity building program in which the main focus has been on interpersonal skills that we require when we are dealing with guests in the shop floor. I, Ashama Chatterjee Mishra, welcome you again on behalf of the fraternity of FHRAI and FHRAI IHM for this session. We are meeting, as per schedule, we are meeting you for the third time. So we'll just try and reiterate to what we have done. So last session, we had discussed on body language. हमने ये सीखा था कि हमारे effective communication में body language का कितना importance होता है. So in an 100% effective communication, 55% आपका communication depend करता है आपके body language पे. आप कैसे बात करते हैं, आपका facial expressions कैसा है, gestures कैसे हैं, if you are honoring people's body space and comfort zone. ये कुछ चीजें हैं जिनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें when you are interacting with people. This will help you to improvise on your body language. We also read about things like how should we walk, how should we stand. ये बहुत बेसिक है, हमें बार-बार बताया जाता है, हम करते भी हैं, but many a times हम busy, हमारा brain preoccupied होने के चक्कर में कुछ गलतियां हो जाती है. So it's how we'll be more aware और हमारा body language कैसे अच्छा हो, ये हमने last session में discuss किया था. Now as we begin the session for today, I would like to begin the session with this line said by Epictetus that we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं सुनने के लिए और 1 मुंह दिया है बोलने के लिए, ताकि हम जितना बोलते हैं उससे दुगना हम सुने दूसरों को. पर क्या है, क्या हम ये करते हैं इन डेली लाइफ? No, we don't. On the contrary, सुनने को हम कम महत्वपूर्ण समझते हैं. We in a conversation, in a communication, हमें लगता है कि जो बोलता है या हम जो बोलते हैं बोलने में ज्यादा importance है than सुनने में. We give more value to speaking than listening, which is not correct. Even हमारा brain भी ऐसे tuned है कि वो जब बोलने के लिए brain kicks के बोलना है, पर सुनना है किसी को, वो enthusiasm brain में नहीं आती है. That's one of the major reasons why listening skills को हम बहुत कम importance देते हैं. See, let's talk about hospitality today. आजकल होटल इंडस्ट्री, अगर हम कोई भी होटल ब्रांड देखें तो फिर कोई भी होटल आप कंसिडर कीजिए, दे आर गिविंग गुड फूड टू पीपल, क्लीन रूम देते हैं, अच्छा बेड देते हैं, हाइजीनिक एनवायरनमेंट देते हैं. ये कुछ चीजें हैं जो हर होटल आपको देती है. यू टेक एनी ब्रांड, कोई भी 5 स्टार ब्रांड आप ले लीजिए, आपकी सिटी में 5-6 होंगे, सब में ये चीज कॉमन है. This helps us to meet guest expectation. अगर गेस्ट कोई भी आपके होटल में आता है, उनको पता है कि हाँ मुझे अच्छा खाना मिलेगा, मुझे कंफर्टेबल बेड मिलेगा, क्लीन रूम मिलेगा. And if you are able to do that, we are meeting expectation. पर अभी जितना हमारा मार्केट कॉम्पिटिटिव बन चुका है, can only meeting expectation succeed us? No. We need to exceed guest expectation. And how we will do that? By knowing about our guest. And for that, initially we need to listen to our guests. Listening is a very important skill. So what is listening? As I said, listening is a very important skill. What do we mean by listening? Scientifically, it's a process by which you gain an understanding of the needs, demand, and preference of your stakeholders through direct interaction. Listening एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा तरीका है जिससे हमें समझ में आता है कि आगे वाले की जरूरतें क्या है, क्या डिमांड कर रहा है,
क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सारी चीजें जो हमसे बात कर रहे हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे इफ वी लिसन टू व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से। जिससे आप बात करें वो कोई भी हो सकता है, वो आपका कलीग हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका टीममेट हो सकता है, आपके पेरेंट्स, फैमिली, बॉस, क्लाइंट, कोई भी हो सकता है। इट कुड बी एनीबॉडी। लिसनिंग साइंटिफिकली होता है, आप कब सुनते हैं? जब कोई वर्ड्स आपके कानों में जाते हैं, आपका ईयर ड्रम में उसका वाइब्रेशन होता है एंड दैट वाइब्रेशन गिव्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन। दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। व्हेन वी आर लिसनिंग पीपल, हम उनके नीड्स समझ पाते हैं कि आगे वाले को क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, उनके इमोशंस जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं उसके साथ कौन सा इमोशन अटैच्ड है, ये सारी चीजें हम लिसनिंग में कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। सो लिसनिंग इज नॉट ओनली विद द ईयर्स, इट इज आल्सो विद योर आईज एंड माइंड। आप सिर्फ कानों से नहीं सुनते, कान तो आपके वर्ड्स या उनका टोन टोन का डिफरेंस समझ पाता है। इमोशंस आप कहाँ से फील करते हैं? जब आप सामने वाले को देखते हैं, उसका इमोशन देख के आप फील करते हो। आप समझते कैसे हो कि वो इमोशन और वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज है वो आपका ब्रेन आपके लिए प्रोसेस करता है। So listening is not only related to ears as a physical organ, it also has a lot of things that needs to do with all your senses, your mind, your eyes and everything, so that you can feel what the person is trying to say. Not only understand the words, but also feel the words. Do you know a typical adult speaks about 100 to 150 words per minute, but can hear and understand at a rate of 200 words per minute? क्या आप जानते हैं कि जब आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम 100 से 150 वर्ड्स बोल सकते हैं 1 मिनट में, पर जब हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ब्रेन 200 से ज्यादा वर्ड्स 1 मिनट में सुन सकता है। सी इट वर्क्स व्हाइल स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं तब भी हमारा ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि आगे हमें जो बोलना है वो हमारा ब्रेन हमें बता देता है एंड वी यूज दोस वर्ड्स। पर जब हम सुन रहे हैं, ब्रेन काफी एक्टिव होता है, तो वो वर्ड्स क्विकली ग्रास्प कर सकता है। इसीलिए क्योंकि हमारे ब्रेन का लिसनिंग के टाइम में द स्पीड इज मच बेटर, proper listening or empathetic listening or listening with actively, it becomes very 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 difficult. बहुत बार होता है कि जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक गेस्ट आके कंप्लेन कर रहे हैं कि कल रात में अच्छे से नहीं सो पाया बिकॉज आई बिलीव द बेड इज नॉट कंफर्टेबल टू मी। क्विकली हम सोचने लग जाते हैं, अच्छा गेस्ट का मतलब होगा बेड इज नॉट कंफर्टेबल, गेस्ट आगे बोलना वाला होगा बेड बहुत सॉफ्ट है, मुझे हार्ड बेड की आदत है। जेन्युइन रिक्वेस्ट गेस्ट से यही आती है, तो ये हम प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है द गेस्ट वाज अबाउट टू से कि नहीं, द आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज मुझे बहुत इचीनेस फील हुई, प्रोबेबली आपका मैट्रेस या आपके इससे बेडशीट से मुझे किसी तरह की कोई एलर्जी है, मे बी देयर माइट बी बेड बग्स। पर हम जनरली प्रोसेस करते हैं, गेस्ट ने बोला बेड तो मतलब गेस्ट को सॉफ्ट बेड नहीं हार्ड बेड चाहिए। हमारा ब्रेन ये चीजें प्रोसेस करके हमें ये मैसेज दे देता है। और बहुत बार होता है बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट लिसन कंप्लीटली आल्सो। आगे वाले को हम पूरा सुनने की भी नहीं कोशिश करते, क्योंकि हमारा ब्रेन को लगता है कि हाँ आगे सिचुएशन तो ऐसा ही होगा। See, listening, that is why in a conversation has already or has always been neglected. एक कॉन्वर्सेशन में जो बोल रहा है द स्पीकर और द स्पीकिंग पार्ट ऑफ इट हैज ऑलवेज बीन गिवन इंपॉर्टेंस। लिसनिंग को इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है, क्योंकि हमें लगता वी अज्यूम थिंग्स। आधा मैसेज सुन के हम पूरा मैसेज अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा, बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, स्पेशली इन लिसनिंग। You need to listen completely so that you get the right message. Now, talking about listening, there is a process of listening. A process of listening है which goes through all these 5 stages: receiving, understanding, remembering, evaluating and responding. जब आप किसी से बात कर रहे हो, सबसे पहला स्टेज होता है कि अब वो जो बोल रहे हैं वो मैसेज आप सही ढंग से रिसीव करो। See, there are a lot of problems in receiving also.
पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि आप किसी से बात कर रहे हो, देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस, कहीं से गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, किसी का मोबाइल फोन बज रहा है, या कोई और किसी को कुछ बोल रहा है. सो इन सारे बैकग्राउंड नॉइस के चक्कर में द राइट मैसेज शायद आप सुन नहीं पा रहे हो. रिसीविंग, नॉट ओनली रिसीविंग में सिर्फ यर्स की ही वैल्यू नहीं होती है, ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोनालिटी एंड द इमोशन. इमोशन आप जो बोल रहा है उनको देख के आप फील कर पाओगे कि वो जो बोल रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं. ही इज फीलिंग अपसेट, ही इज फीलिंग हैप्पी, लो, उनका जो भी इमोशन है उसको भी सही ढंग से पकड़ के रिसीव करना इज इम्पोर्टेंट, ताकि जो वर्ड्स हम सुन रहे हैं और जो इमोशन हमने रिसीव किया है उन दोनों को क्लब अप करके हम पूरा मैसेज अपने ब्रेन में समझने की कोशिश कर सके. Which means we are talking about stage 2, that is understanding. Understanding is basically an attempt to learn the message, to learn the meaning of the message. वो जो आपको स्पीकर ने बोला उसका बेसिक मीनिंग क्या हो सकता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. हम इमोशन फील कर, हम वहां पे इमोशन का वैल्यू इसीलिए अटैच करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सके जो बोल रहा है वो ये वर्ड्स क्यों बोल रहा है, क्या फील करके बोल रहा है. वो अगर हम समझ पाए तभी हम आगे उनको आंसर देने के लिए तैयार कर सकते हैं. स्टेज 3 or the process of listening is remembering. See, it is very important to remember what you are listening. हमारा ब्रेन बहुत बार होता है कि हम मल्टीपल चीजें रिसीव करते हैं. आप किसी से बात कर रहे हो और सडनली आपके सामने लैपटॉप खुला है, आपका ईमेल आ गया या व्हाट्सएप ब्लिंक कर गया, तो हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए डेविएट करता है, बट देन दैट टाइम वी फॉरगेट व्हाट द पर्सन इज सेइंग. या फिर सोचिए कि आप रेस्टोरेंट में हो, आप ऑर्डर ले रहे हो काफी सारे, आपको 3-4 टेबल के ऑर्डर आ गए. दैट्स व्हाई हमें बहुत बार बोला गया है, जब हम हॉस्पिटैलिटी में स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में थे, आईएचएम्स में, तब से हमें आदत करवाई गई है कि कैरी अ नोटपैड, स्मॉल पॉकेट नोटपैड एंड अ पेन. क्यों? ताकि कोई भी चीज हमें याद नहीं रहती तो हम उसको फटाफट लिख लें. काफी सारे लोगों ने आपको काफी सारा डेटा दे दिया या आपने 2-3 टेबल से एक बार ऑर्डर उठा लिया, क्विकली राइट इट डाउन. हर किसी का ब्रेन इतना सुपर एक्टिव नहीं होता है कि वो सब कुछ रिमेम्बर कर सके. So remembering the complete message that you have heard, that's also important, and that's important in stage 3. आप पूरा मैसेज याद कर, रिमेम्बर करोगे, उसको याद रखोगे, फिर उसको अपने दिमाग में दोबारा रिट्रीट करोगे, तभी आपने जो सुना उसका सही इवैल्यूएशन कर पाओ, उसका मतलब उसका सही वैल्यू समझ पाओ वर्ड्स के. After remembering the complete message, only you will be able to go to stage 4, that is evaluating the message. That is जो स्पीकर ने बोला वो क्या सेंस करके बोल रहे हैं, उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, या उनके वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, what we can do to solve this issue or help him out. That evaluation you will do once you have remembered the message. And only after you have evaluated the complete message, complete scenario को आप समझ पाए, स्पीकर के इमोशन समझ पाए, वर्ड की मीनिंग समझ पाए, उसको इवैल्यूएट कर पाए, उसके बाद ओनली रेस्पॉन्डिंग, उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए स्पीकर को. दैट इज अ करेक्ट प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. बहुत बार होता है कि आपने कुछ बोला ही नहीं, आप किसी से बात कर रहे हो, आपका सेंटेंस खत्म हुआ ही नहीं कि सामने वाला आपको रिप्लाई देना शुरू कर देता है. In that situation, understand he is not processing the words or the words and the emotions attached to your message. जो मैसेज आपने उनको दिया उन्होंने उसको अच्छे से समझ के याद रख के प्रोसेस नहीं किया, उन्होंने सुपरफिशियली वो मैसेज को डील करके आपको आंसर दे दिया. बट इफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, you will take the words to all these 5 stages. First you will receive properly, then आप उनको समझेंगे, उसको याद करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, भावतोल करेंगे उस सिनेरियो का या मैसेज का, और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करोगे. Taking whatever you are receiving, the words, taking it through all these 5 stages will ensure a proper process of listening. Except for the process of listening, there is one more important thing about listening.
That is levels of listening. Basically, we have 5 levels of listening. First is empathetic listening. Second is attentive listening. Third is selective listening. Fourth is pretense listening. And fifth is ignoring. So ये pyramid जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, let's discuss it from bottom to top. First, we will start with ignoring. I think सबके साथ ही ये हुआ होगा कि जब कभी भी आपके पेरेंट्स से किसी की बात पे लड़ाई या कुछ हो गया होगा, आपके मम्मी आपको पीछे से कुछ बोल रहे हो कि अरे तुम ये करो, तुम तो हमारी बात नहीं मान रहे, टेक माय एडवाइस. बहुत टाइम हम क्या करते हैं, हम हमारे ब्रेन को नम कर देते हैं. लाइक आवाज हमारे कानों तक आती तो है, पर वो ईयरड्रम से आगे जाती ही नहीं है हमारे ब्रेन में. वी कंप्लीटली इग्नोर, you do not acknowledge only. मम्मी क्या बोल रही है या कलीग क्या बोल रहा है, हम उसको एक्नॉलेज करने की मतलब सोचते भी नहीं है. हम ना कमेंट करते हैं, जो भी मम्मी बोल रही है कि हाँ करेंगे नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करते. वी जस्ट मेक आवर ब्रेन यू नो गो नम एनफ दैट जो भी वर्ड्स हमें बोले जा रहे हैं हम उसको कंप्लीटली वी इग्नोर. सेकेंड टाइप ऑफ लिसनिंग इज प्रिटेंस लिसनिंग. प्रिटेंस लिसनिंग में आप एक्नॉलेज कर रहे हो पर आप सुनते नहीं हो. लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो. आप आपके मैनेजर से बात करने गए हो और मैनेजर अपने लैपटॉप में बिजी है, कुछ टाइप कर रहे हैं या कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और आप उनको जाके अप्रोच करते, सर आई नीड टू स्पीक टू यू, एंड ही सेज यस टेल मी आई एम लिसनिंग. बट वो आपकी तरफ ना देखते हैं ना एक्नॉलेज करते हैं. आप सिर्फ जब बोल रहे हो वो सिर हिलाते रहते हैं, हाँ अच्छा अच्छा ये हुआ. दैट इज कॉल्ड प्रिटेंस लिसनिंग. हम लोग स्कूल में भी करते थे. I used to do in my history class. History मुझे पसंद नहीं थी, पर जब teacher was teaching, I used to nod my head, pretending that I am listening to her, but I was literally not listening to her. That is called pretense listening. आप दिखाते हो आगे वालों के आप सुन रहे हो, पर उनके वर्ड्स आपके कानों तक जाते हैं, but you do not register in your brain. या आप उसका कुछ यूटिलिटी जो भी आपने सुना उसको आप ब्रेन में डाल के कोई एक्सरसाइज नहीं कराते. Third is selective listening. Now, selective listening is why we do it, because we know जो हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए important है. For a scenario, आप मॉर्निंग मीटिंग में खड़े हैं, सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि होटल में आज वीवीआईपी गेस्ट है, ये है वो है, और जैसे ही आपका नाम लेता है मैनेजर, आप तब बिल्कुल अलर्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, आपके कान खड़े हो जाते हैं. That is called selective listening. Selective listening is also a gift that we have from our sensory organs. Okay, why I'm telling you selective listening is important, क्योंकि ये हमारे response का एक active part है, हमारे reflex action का एक part है. देखिए बच्चे जब पैदा होते हैं बोलते हैं कि उनमें सुनने की शक्ति धीरे धीरे आती है. बच्चा जब 21 दिन का या 23 दिन का हो जाता है, that time baby is able to acknowledge few sounds. बच्चा जब 21 या 23 दिन का हो जाता है तब वो कुछ साउंड आइडेंटिफाई करना शुरू करता है. उसको उसके कान में हम रैटल्स लेके झुंझुना लेके अगर उनके कानों के पास आप ये करो तो दे विल लुक टुवर्ड्स जहां से साउंड आता है. या फिर अगर आप बच्चे को कोई निकनेम से बुला रहे हो उसको रिपीट करो तो बच्चा आपकी तरफ देखता है. ये आपकी बॉडी का और आपकी ब्रेन का ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है कि यहाँ से नॉइज आ रही है तो मुझे इस तरफ देखना है. That is also selective listening is a gift from that sensory organs. कि आपका नाम किसी ने लिया नहीं और आप immediately आपका attention you become on alert position और आपके कान आपका brain सब open हो जाता है to receive the message. That's called selective listening. And last and not the least is attentive listening. Now in attentive listening, it is both merit and demerit. Reason being, आप पूरा मैसेज बड़े अटेंटिवली सुनने की कोशिश करते हो. जैसे कि सपोज गेस्ट कंप्लेन कर रहा है, आप बहुत अटेंटिवली गेस्ट को सुनते हो वो कंप्लेन कर क्या कर रहा है, बट एज योर अटेंशन यू आर ऑन हाई अलर्ट, आपका ब्रेन दुगनी तेजी में उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि हम 200 से ज्यादा वर्ड्स एक टाइम में सुन के समझ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे ब्रेन में. जब हम बहुत अटेंटिव होके कुछ सुन रहे हैं हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है,
तो वो उससे ज्यादा तेजी से वर्ड्स कैप्चर कर सकता है। उसका डिमेरिट ये होता है कि मैसेज जितना हम तक आ रहा है, अगर गेस्ट बोलते हुए 100 वर्ड्स की स्पीड में बोल रहे हैं, हम 200 की स्पीड में प्रोसेस करते हैं। मतलब हम सिनेरियो को काफी आगे तक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो 4 हमने बात की, इग्नोरिंग, प्रिटेंस, सिलेक्टिव या अटेंटिव, ये सब हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। इट इज विद इन वंस ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे किसी को इग्नोर करना है, मुझे सिलेक्टिवली सुनना है, अटेंटिवली सुनना है, ये मेरे दिमाग के कंट्रोल में है। बट व्हेन इट कम्स टू एम्पैथेटिक लिसनिंग, इट इज एन अदर्स फ्रेम। सामने वाला जो बोल रहा है उसका इमोशन पकड़ के, उसके वर्ड्स को प्रोसेस करके, उसी की इमोशन को बेस करके रिप्लाई करना इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। somebody is really upset, उसका मूड लो है, उसके घर में कोई बुरी खबर है, उसको दुख हो रहा है, तो सिर्फ उसके शब्दों को ना पकड़ के उसका दुख, जो उसके इमोशन उनके फेस पे है, उनके टोन पे है, उसको कंट्रोल करके वही इमोशन को सुन के उसको रिप्लाई करना इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डू एम्पैथेटिक लिसनिंग। आप सुनो उनको, उनके दर्द को फील करो सुनते हुए। आई रियली फील कि हाँ, मेरे घर में भी किसी के साथ ऐसा होता तो मुझे बुरा लगता। तो ये दूसरे के फ्रेम में है, उनका इमोशन को हमें स्टडी करना है, फिर वो इमोशन को अपने में शो करना है। बट अदर देन दैट, ऑल अदर 4 लिस्टिंग्स आर टोटली इन माय ओन माइंड फ्रेम। किसी को सुनना है, किसी को इग्नोर करना है, आई कैन डू इट। बट व्हेन वी आर वर्किंग इन होटल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लास्ट वन, दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। हमें दूसरे का फ्रेम ऑफ माइंड समझना बहुत जरूरी है। Now, when we are talking about listening, one common problem that people say is our barriers of listening. सुनने में, whenever you want to listen to somebody or when you're listening to somebody, there is a lot of barriers that you have. जब let's consider you are the sender or the speaker here. आप बोलना चाहते हो किसी को कुछ, आप आपके दोस्त या कलीग को कुछ बोलना चाहते हो, बोलने से पहले ही आप 100 बातें दिमाग में सोचते हो। अच्छा, मैं ये बोलूं तो आगे वाला मेरी बात समझेगा, वो मेरे बात का सही मतलब निकालेगा या मुझे गलत समझेगा। ऐसा हम पहले सोचना शुरू करते हैं। ये सोच के जब हम मैसेज बोलना शुरू करते हैं, हम सही फील ऑफ द मैसेज को वैसे ही खराब, मतलब बैरियर क्रिएट कर देते, तो सही मैसेज नहीं आता। जो सुन रहा है, हमें उसके भी दिमाग में बैरियर्स है कि अच्छा, ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि ये सही मीन करके बोल रहा है, ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है या बुरे के लिए बोल रहा है। उसके दिमाग में भी ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं। ऐसे बैरियर्स रहते हुए वो मैसेज रिसीव करता है, तो ऑफ कोर्स वो मैसेज का सही मीनिंग रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगेन वो मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर वो रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, तो उनके खुद के बैरियर्स भी है। अच्छा, मैं रिप्लाई करूंगा उसको, वो मेरे रिप्लाई को गलत मतलब तो नहीं ले लेगा, वो मेरे रिप्लाई, वो समझेगा कि आई एम ट्राइंग टू बी गुड एंड जेन्युइनली रिप्लाई टू हिम। और डाउन द लाइन जो मैसेज वापस सेंडर तक जाता है, उसमें भी सेंडर के खुद के बैरियर्स होते हैं। तो जब भी आप भी कम्युनिकेशन में होते हो, बोलने से आपने कुछ बोला, आगे वाले ने सुना, फिर उसका जवाब आपको दिया, ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसमें काफी सारे हडल्स, बैरियर्स, ये सब होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बैरियर्स समझे और उनको जितना पॉसिबल मिनिमाइज करें। सारे बैरियर्स जीरो तो नहीं हो सकते, पर हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। When we are talking about barriers of listening, फर्स्ट इज एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल बैरियर का सबसे पहला होता है एनवायरनमेंट। आप आपके दोस्त से बात कर रहे हो, आप एक मार्केट प्लेस पे खड़े हो, गाड़ियों के हॉर्न है, दूसरों की आवाज है, पीछे आपका किसी का मोबाइल फोन बज रहा है। दीज ऑल आर बैरियर्स। आपके, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, आपके शब्द, आपकी टोनालिटी, ये सब सही ढंग से आपके दोस्त तक पहुंच ही नहीं रही होगी। Even distance, while we are using a telephone, internet issues, your network issues, these all come under your external barriers. Then external barrier is speaker. Speaker जो बोल रहा है, वो कौन से माइंड फ्रेम में बोल रहा है।
जैसे कि मैं अपने मैनेजर को जाके छुट्टी के लिए बोलना चाहती हूँ, पर मुझे पता, मेरा दिमाग में एक चीज है कि अरे मेरा मैनेजर बहुत अप्रूव है, उसको जितने अच्छे से भी जाके रिक्वेस्ट करो छुट्टी के लिए, वो मानेगा ही नहीं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करेगा, चिक चिक करेगा, ये करेगा वो करेगा। ये सोच लेके जब मैं जाती हूँ बात करने के लिए, तब ऑटोमेटिकली मैं शायद अपना बात ठीक से रखूं ही ना। मुझे सीधा सीधा छुट्टी चाहिए वो नहीं बोल के मैं ऐसे कहूँ, सर कल मेरे कोई काम नहीं है, और कल ऑक्यूपेंसी बहुत लो है, और सर कल कोई मेजर काम भी नहीं है सर, स्टोर से भी सारा सामान उठा दिया है। हम 10 सेंटेंस बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि सर अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं छुट्टी दे दूं। पर आपके लिए वो छुट्टी बहुत जरूरी है, आपके लिए वो छुट्टी इसीलिए जरूरी है बिकॉज यू रिक्वायर्ड। आप सीधा बोल सकते थे सर मुझे कल छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। डायरेक्ट बोलते तो शायद छुट्टी इजीली मिल भी जाती। सो ऑल दीज, हम जो सोच लिए कि हाँ मेरा मैनेजर मानेगा नहीं, दैट्स अ बायस दैट मैं अपने दिमाग में क्रिएट कर देते, द स्पीकर हैव क्रिएटेड इन हिज और हर हेड। ये सारी चीजें हमें कम करनी। एंड कमिंग टू इंटरनल, जो लिसनर के बायसेस होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन लिसनर, जो सुन रहा है उसके भी दिमाग में बायसेस होते हैं। जैसे कि मेरा एक एम्प्लॉय लेट आया है, मैं एक नई, आई एम न्यू मैनेजर टू दिस प्रॉपर्टी, एंड मुझे पता है, मुझे मेरे पुराने मैनेजर ने बोला था चार्ज देते वक्त, अरे ये जो एम्प्लॉय है राम, ये तो हमेशा लेट आता है और ये आके आपको बहाने मारने शुरू कर देगा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, आधे से ज्यादा झूठ बोलता है। एंड टुडे आई एम डूइंग माय शिफ्ट और दैट सेम एम्प्लॉय इज लेट। तो मैं जब वो जेन्युइनली, हो सकता है कि जेन्युइनली उसकी आज गाड़ी खराब हो गई है और वो मुझे बोलना चाहता हूँ कि नहीं मैम सही में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे बहुत दिक्कत हुई इसीलिए मैं लेट हो गया। बट क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात है कि अरे ये तो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाता है, ये तो लेट कमर ही है, तो मैं उसी माइंड स्टेट में उसको इवेल्युएट करूंगी। आई विल कीप दैट बायस इन माय माइंड एंड देन आई विल लिसन टू हिम। तो उसके जो वो सच्चाई है वो मुझे बहाने लगनी शुरू हो जाएगी। दैट्स माय इंटरनल बैरियर। हमें हमेशा टू हैव एन इफेक्टिव लिसनिंग, सही मैसेज समझने के लिए हमें ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स को जितना पॉसिबल मिनिमाइज करना है। देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ रिमूव कर दे। आपके फोन में इंटरनेट इश्यूज आपके कंट्रोल में नहीं होता है, या फिर नेटवर्क इश्यूज आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ये इन्वायरमेंटल है। या फिर कोई, आप किसी से दोस्त से बात कर रहे हो और सडनली दूर से कहीं से एक आवाज आई, these things are not under our control, but we have to see that as much as we can minimize it. And of course हमारे जो biases हैं both speaker और listener के, वो हमारे दिमाग में है, उसको हम जितना possible practice करके control करें। So how do we overcome our listening biases? By doing these few points, creating the right environment, जब आप बात कर रहे हो talk to the person in a right environment, communicate face to face. See, nowadays communication has become very easy. We all have smartphones. मोबाइल फोन आने के बाद काफी हद तक कम्युनिकेशन सही हो गई है, व्हाट्सएप ये सब है। बट हम फोन में टोनालिटी वगैरह तो समझ पाते हैं, बट अगर हम किसी को फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उनका इमोशन समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। यस, मेनी ऑफ यू कैन से कि वीडियो कॉल, स्काइप कॉल ये सब है, बट जो बात एक दूसरे के सामने बात करने में है, उतना शायद स्काइप और वीडियो कॉल इज नॉट गिविंग यू। So it's better that you communicate face to face, at least when it is a very grave situation. Third point is very important, be open minded. जब भी आप किसी को सुने, आप अपना दिमाग खाली करें, like a clean paper or a slate, और तब सुने। आपके दिमाग में अगर है कि नहीं ये राम जो आके अभी बोलेगा ये तो झूठी बोलेगा, ये हमेशा लेट आता है, ये एक्सक्यूज देगा ही देगा, अगर ये चीज आपके दिमाग में है, if you have closed your mind with this excuse, you will not be able to understand the real reason why the person was late. So always be open minded when you are listening to somebody. Use verbal communication to indicate that you are listening. जब आप किसी को सुन रहे हो तो वर्बली एक्नॉलेज कीजिए, जैसे ये बोलना कि अच्छा ये हुआ, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ,
या फिर वो जो मैसेज बोल रहे हैं उसका मेन जो पॉइंट्स होता है उनको सुन के रिपीट करना, या फिर उनको मतलब पूछना, अच्छा आपका मतलब ये है, आप ये बोलना चाहते हो। ऐसे फ्रेजेस से पता चलता है कि आप सुन रहे हो उनको, and the person who is speaking will be interested to continue. Listening fully before speaking. Now, this is very important. बहुत लोगों में ये आदत होती है कि बात काटने की, स्पीकर जो बोल रहा है उसको कंप्लीट ना करने देने की। That really irritates the speaker a lot. बहुत लोगों को इरिटेशन होती है जब आप उनकी बात बीच में काट लो या उनकी बात ना सुनो। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। Think of a scenario specifically जब कोई आपको कंप्लेन करने आ रहे हैं, when somebody is very angry or upset, बायोलॉजिकली क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है। अगर कोई गुस्से में है तो उसका हमने देखा है चेहरा लाल है, सांसें बड़ी तेज है, ब्लड इज रशिंग, हार्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कैन बी डीम्ड टू बी अ प्रेशर कुकर, जिसमें कि काफी सारा प्रेशर है, गैस पर एयर प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे लोगों को बोलने देना चाहिए। अगर कोई ऐसे कंप्लेन कर रहा है उनको बोलने दीजिए एंड लेट देम फिनिश कंप्लीटली। उनकी बात बीच में मत काटिए। अगर आप उनकी बात बीच में काटेंगे तो वो और इरिटेट होंगे और गुस्सा आएगा उनको। आप उनको कंप्लीटली उनका बात खत्म करने दीजिए। Once the person is finished completely, it is like you have released the pressure out of the cooker itself. Automatically you will see the person, उनका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, उनकी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, and then he will be in a state to listen to your reply also. So while you are listen somebody fully before speaking. Do not interrupt the person who is speaking. That's why have your patience and listen completely. Paying attention to verbal and non-verbal message, verbal, all the words plus the non-verbal message like your body language, eye movement, your facial expressions, the emotion attached to the words, in सबको अच्छे से ध्यान दें. And pay attention to the content rather than the delivery and take notes. बहुत बार होता है कि गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया, गेस्ट आके गुस्से में आप पे चिल्ला दिया, बट आपको ये नहीं देखना है कि गेस्ट गुस्से में है, आपको ये देखना है कि गेस्ट गुस्से में है क्यों, और गेस्ट ने गुस्से में आपसे क्या कहा, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से द पर्सन इज अपसेट या द पर्सन इज एंग्री, व्हाट इज द रीजन, फाइंड आउट द रीजन फ्रॉम द मैसेज, और जरूरत पड़ी तो प्लीज टेक नोट्स। एज आई अर्लियर सेड कि सबका ब्रेन इतना ज्यादा शार्प है, इतना प्रोएक्टिव नहीं होता कि सारा कुछ जो सुने वो रिटेन कर दे। कभी कभार होता है कि हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन वो हमारे एक्टिव या कॉन्शियस माइंड में नहीं रख के हमारे ब्रेन के बैक साइड, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड में रख देता है वो बातें, दैट इज योर सेकंड मेमोरी जो इसमें होता है। सो वो चीजें हमें याद जल्दी से नहीं आती है। सो इट इज बेटर दैट यू टेक नोट्स। कोई कुछ बोल रहा है, आपको याद नहीं रहेगा, आप नोट्स ले लीजिए। मेनी टाइम्स इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू, लाइक आप कहीं पे कोई सेमिनार या कहीं किसी से डिस्कशन में कुछ बात कर रहे हैं, कोई नया टर्म आपने सुना या कुछ भी नया आपको लगा या कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली जो आपको नहीं पता है, उसको लिख लीजिए, बाद में रिसर्च कीजिएगा तो आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा। So these are few steps that you can take to overcome the basic listening barriers that you have in a communication. Last but not the least, guidelines for effective listening. So whenever you are talking to people, there are some things that you can do to listen effectively. Firstly, find an area of interest. See, दिन में ऐसा टाइम आता है कि we meet some people every day. लिफ्ट में आप जा रहे हो, आपके पड़ोस वाले नेबर के साथ रोज एक टाइम आप ऑफिस निकलते हो, तो आप उनकी बातें सुनते हो, या फिर आप लोग 5-6 लोग एक साथ एक ही बस स्टॉप से बस पकड़ते हो और एक ही बस स्टॉप में उतरते हो। ऐसी लाइफ होती है बहुत लोगों की। सो दैट डज नॉट मीन ऑल 5 ऑफ देम आर क्वाइट द कंप्लीट जर्नी। वो लोग एक दूसरे से बात करके आते हैं, तो बात करने के लिए या दूसरों को सुनने के लिए कोई एक कॉमन एजेंडा जो आपके इंटरेस्ट में हो उसको पिक कीजिए। हो सकता है वो इंटरेस्ट आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, बहुत लोग डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स चल रहा है, अभी यूरो कप चल रहा है, वो हो सकता है डिस्कशन, या फिर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, दैट कैन बिकम अ वेरी कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
सो कहीं पे भी हो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो कीजिए एंड लिसन टू दैट प्रॉपर्ली. जज द कंटेंट नॉट डिलीवरी. एज आई हैव सेड, कंटेंट क्या है, वजह क्या है, उसको जज कीजिए, नॉट दी डिलीवरी. क्योंकि कभी कभार मोड ऑफ डिलीवरी गेस्ट का या जो आपसे बात करे गलत हो सकता है, गुस्से में बोल दिया, पर क्यों बोला, वजह क्या है उसकी, वो जानने की कोशिश कीजिए. विदाउट इवैल्यूएशन अंटिल कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्लीट. एक मैसेज जो आप सुन रहे हैं उसको पहले पूरा कॉम्प्रिहेंड कीजिए, पूरा सुनिए और समझिए, उसके बाद उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कीजिए. बहुत बार लोग होता है कि आधा सुन के ही अपना जजमेंट, अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, वो गलत है. पहला पूरा सुनिए, पूरा उसको समझिए, उसके बाद इवैल्यूएट करके अपना व्यू पॉइंट रखिए दूसरों के लिए. लिसन फॉर आइडियाज. दिस actually works good when you are in a group discussion. आप एक ग्रुप के साथ बैठे हो डिस्कशन के लिए, या इवन इंटरव्यू के लिए पहला राउंड आजकल हर जगह ग्रुप डिस्कशन होता है when bulk of your participants होते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा टॉपिक आ जाए कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोले, या फिर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है या बहुत कम नॉलेज होती है. ऐसे सिनेरियो में चुपचाप बैठ के सुनना इज ऑल्सो अ गुड स्किल, जो कि इंटरव्यूअर आपका नोट करेगा. आप में सुनिए दूसरे क्या बोल रहे हैं. उस अगर आप थोड़ी देर सुनेंगे अच्छे से बैठ के इंटरेस्ट दिखा के, तो आपका उस टॉपिक पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. तब आप आपका व्यू पॉइंट उस टॉपिक पे रखने के लिए केपेबल होंगे. सो लिसनिंग फॉर आइडियाज इज अ गुड थिंग. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट समथिंग, इट्स ओके, आई डोंट नो, ठीक है, मैं सुनता हूँ कि बाकी क्या बोल रहे हैं. सुनने के बाद मुझे थोड़ी समझ आ जाएगी इस टॉपिक के बारे में, तो फिर मैं अपना पॉइंट कंस्ट्रक्ट करके बोल सकता हूँ. दैट्स अ गुड आइडिया in such a situation. Be flexible in note taking. As I've just mentioned that it is good to take notes. It adds, the notes add as a secondary memory for you to bank on. Work at listening. See, it's very important that we need to work at listening, because हमारा ब्रेन ऐसा ही ट्यून्ड है कि हम बोलने पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरे को सुनने का पे फोकस नहीं देते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं. So it's very important that we work at our listening. Restrict distraction. So whenever you're listening to people, please restrict distraction. आप आपके कलीग से बात कर रहे हो, आपके जूनियर्स या सीनियर्स से बात कर रहे हो, तो जो भी डिस्ट्रैक्शन साइड में हो सकती है उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए. जैसे कि आपका फोन को साइलेंट मोड पे रख लीजिए, लैपटॉप खुला है, लैपटॉप को स्लीप मोड में डाल लीजिए, ताकि जो 5 मिनट आप आपके एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, पूरा उनको ही अच्छे से सुनो. आप उनकी कोई बात सुन रहे हो पर बीच में एक ईमेल आ गया या फिर एक व्हाट्सएप आ गया, तो आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो ही जाएगा. आपके दिमाग में आएगा अच्छा मुझे ये ईमेल क्या है चेक करना है. सो रेस्ट्रिक्ट कीजिए, जितना पॉसिबल उतना मिनिमाइज कीजिए जो डिस्ट्रैक्शंस है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, exercise your brain and keep your mind open. I mentioned it earlier, I'm repeating it last and again. प्लीज अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए उस, और अपना दिमाग एज अ ब्लैंक स्लेट की तरह रखिए व्हेन यू आर लिसनिंग टू एनीबॉडी, ताकि जो बोल रहा है आगे वाला आप उसको उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करें. अगर आप आपके दिमाग में बायसेस रखेंगे, आपको कोई मतलब किसी आपके कोई जूनियर से आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है पहले, मे बी द जूनियर हैज डन समथिंग रॉन्ग, जिसके चक्कर में एक नेगेटिव इंप्रेशन हो गया आपका. अगर वही नेगेटिव इंप्रेशन आप दिमाग में रख के आप उस एम्प्लॉय की बात सुने, आप कभी उसकी मतलब उसकी बात को सही ढंग से नहीं ले पाएंगे. यू विल, दैट नेगेटिव इमोशन विल ऑलवेज प्ले. So always keep your mind clean as a blank slate and listen to people. You will see आप सही emotion पकड़ पाओगे, सही message समझ पाओगे, and the communication will be much better. With this, we come to the end of today's session. So major takeaways from today's session was listening. It is one side of the conversation. इसको हम neglect कर देते हैं, but नहीं, ये conversation का equal हिस्सा है. It is equally an important part of conversation. And active listening is actually a skill जिसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी. अपना एक honest assessment करें
प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स और योर कलीग्स और उनको पूछिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन में या ऐसे कोई सिनेरियो में आप कितना सुनते हैं और कितना जल्दी जल्दी बोल पड़ते हैं. Do you listen properly or not? Please do an assessment of yourself and please recognize different barriers. Do not fail to recognize the barriers that prevent us in understanding others' viewpoint. जो भी barriers है उसको कम कीजिए. External environmental barriers है कम कीजिए. Internal barriers है आपके biases वगैरह जो आपके दिमाग में है उनको जितना possible minimize कीजिए. Keep yourself open-minded when you are listening to people. With that, we come to the end of the session. Next week will be our last session for this capacity building program, and we'll be covering two topics next week, that is on empathizing service and on mindfulness. So next week, I expect to see you all at the same time to cover these two skills, that is on how to empathize with people and how to be mindful. This will really help us a lot to be focused in our work more. With that, I close the session for today. If there is any queries, any questions you have, you can please type it out in the chat box. I'm open to take up any questions, any discussion points you want to discuss with me. Next week will be our last session. At the same time at 4 o'clock, we'll meet and we'll be discussing both the topics. So I expect everybody to be present there next week. Any questions, any queries, any pointers for me, please put down in the chat box. I'm open for discussion. If there is anything else, you can definitely reach out to me on my email ID that I'm putting down in the chat box for your further reference. I take this opportunity also to let all of you know that if you want to see the recorded sessions that we have done earlier, you can please visit our page on YouTube, that is FHRAI-IHM. There you will find all the recordings of the sessions that we have done for both food production and for rooms division team also, just to keep retraining yourself with the knowledge. With that, I thank you everyone for being present today. I'm putting down my email ID for further reference. If you have anything, you can please reach out to me on my mail ID. Thank you. Thank you, Ashima Madam, for this lovely session on listening skills. I'm sure a lot of us have learned something from this session, and we will try to inculcate all the skills basically, and especially the listening skill. Whenever we are talking to a guest, we should always open our ears and try to read between the words. जब वो बोलते हैं हमें ध्यान सुनना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए जो नहीं बोल रहे हैं. तो उसी के साथ thank you everybody for joining this session. Hope to see you next week. And for those who have not put down their names and email ID in the chat box, kindly do so because we will be disbursing the certificates. And for those, we need attendance, and please write your name and your email ID in the chat box. Hope to see you soon again next week at the same time. Thank you very much. Thank you, Ashima Madam. Have a nice day. Have a nice week. Have a safe week.